हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। Assalamu alaikum and a very warm, heartiest and patriotic good morning to everyone present here. My name is Ali Raza Khan. I'm a first semester BS English student and it is my absolute honor to serve as your master of ceremony for today. Assalamu alaikum everyone. I am Elena Shahid and I am third semester BS Media Sciences student. I am truly delighted to co-host this prestigious occasion today. There are some days that we celebrate and then there are days that we feel. Today is one of those days. We are gathered here today as Pakistanis, as a generation that inherited a country born out of an extraordinary dream. और उस ख्वाब की कीमत सिर्फ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती. It was paid in sacrifice, in separation, in immense courage and in the unwavering belief that one day a country called Pakistan would exist. And today, 79 years later, here we are, still celebrating, still believing and still dreaming. और सबसे खूबसूरत बात, पाकिस्तान ने हमें ये सिखाया है कि मुश्किल वक्त कितना भी सख्त क्यों ना हो, हम रुकते नहीं. We stumble, we struggle, sometimes we even fail and fall, but somehow we rise again. We rise again and I'd like you to read this. हमें तो वक्त ने हर मोड़ पर आजमाया है, हमें तो वक्त ने हर मोड़ पर आजमाया है, कभी आंधियों ने कभी गम ने सताया है. ये पाकिस्तान है, इसे मिटाया नहीं जा सकता. ये पाकिस्तान है, इसे मिटाया नहीं जा सकता. ये ख्वाब है जिसे दबाया नहीं जा सकता. Absolutely, and a big round of applause to that very, very prestigious quotation shared by our wonderful co-host, Lena Shahid. But ladies and gentlemen, before we take you through this incredible journey, it is our privilege to formally welcome all those who have joined us for this very important occasion. I'd like to start off by welcoming with a lot of reverence Dr. Suleiman Sheikh, the Board of Governor, Zabis University. I'd like to extend our warmest regard and gratitude to Secretary, Board of Governors, Mr. Shams Jafarani. I'd also like to pay immense respect and honor to our chief guest for today, Member Board of Governors, Zabis University, Dr. Talib Lashari. I'd like to pay my immense respect to our officiating President, Zabis University, Mr. Imtiaz Qazi, Honorable Vice President, Academics, Zabis University, Dr. Muhammad Aldaf Mukati, Vice President, Development and Finance, Madam Nasreen Haq, all our respected deans, directors, heads of departments, program managers, faculty members, and the heartbeat of our institution, our very beloved students. Welcome. वेलकम यू ऑल. आप तमाम ही लोगों को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं आज की इस खूबसूरत सी सुबह आज़ादी पर. सोचिए, आज से 79 साल पहले एक नया मुल्क, ना मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना आसान हालात, ना कोई तैयार रास्ता, बस सिर्फ एक यकीन, एक आज़ाद मुल्क. From that difficult beginning, people started to build up. Nations are built by generations, ladies and gentlemen. From classroom to laboratories, from cricket ground to international states. From the world of literature and cinema to science and technology, Pakistanis have continued to prove that talent knows no boundaries. और जब हमारा कोई एक शख्स पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो फ़ख्र सिर्फ उस शख्स को नहीं होता. An entire nation feels it because Pakistan's greatest strength is its people.
और अब हमारी अगली पेशकश एक ख़ास वीडियो ट्रिब्यूट है। एक ट्रिब्यूट उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने अपनी मेहनत, क़यादत, हुनर, इल्म और हौसले से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने इल्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, हमारे डॉक्टर्स जो इंसानियत की खिदमत में हमेशा आगे रहे, हमारे आर्टिस्ट एंड राइटर्स जिन्होंने पाकिस्तान के कल्चर और कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। एब्सोल्युटली एलेना। मैं खराज तहसीस पेश करता हूँ हमारे एथलीट्स जिन्होंने मैदानी खेल में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे सोल्जर्स और हमारे टीचर्स। ये कौमी तराना की ख़ास पेशकश उन सभी की खिदमत में आप सबके सामने पेश की जा रही है। A big round of applause to the entire team. मुक़द्दस सरज़मीं हमेशा शादबाद रहे। ये खूबसूरत मुल्क हमेशा खुशो खुर्रम रहे। तू बुलंद हस्ती का निशान है ऐ पाक सरज़मीं। ईमान का ये मरकज़ हमेशा सलामत रहे। पाक सरज़मीं का नज़्मो नस्क। अवाम की बाहमी अखुवत की बदौलत है। कौम, मुल्क और सल्तनत हमेशा जिंदा और रोशन रहे, हमेशा खुश रहे और अपने मकासद की तकमील में कामयाब हो। ये चांद और तारे वाला परचम तरक्की और बुलंदी और कमाल का रहनुमा है। माजी की ताबीर मौजूदा ज़माने की अज़मत और मुस्तक़बिल की क़ुव्वत है। अज़मत और जलाल वाले अल्लाह के साए तले। Truly a remarkable piece of work. कौमें सिर्फ तारीख़ से नहीं बनती, कौमें उन लोगों से बनती हैं जो अपनी तारीख़ खुद लिखने का हौसला रखते हैं। Deepest regard to Mr. Taha Kaisar for producing and being the creative force behind this video. A special shout out to Mr. Naeem Shah for supervising and coaching such an amazing undertaking. Zabist Musical Arts Society, in collaboration with Zabist Marketing Department, Media Sciences Department, Zabist Student Council, and the Office of Student Affairs. A big congratulations and thanks to you for bringing up such a stellar cast and a stellar creative work. Thank you all. And today, thank you. Today, as we continue writing another chapter of our journey, there is one institution, a council, that deserves special recognition. Because this very momentous celebration has been brought to you through the creativity, dedicated and remarkable efforts of the Zabist Student Council. और आज की ये खूबसूरत महफिल भी उसी जज्बा खिदमत का एक हिस्सा है।
And now, as we take forward the proceedings of this remarkably memorable day with a special message from someone who truly embodies the spirit of leadership, someone who has stood at the forefront of student leadership since the last 1 year and has once again been entrusted with that responsibility this year too. During his previous tenure as president of the Zabis Student Council, Mr. Asim Raza undertook significant development initiatives, became a strong voice for the student body, and contributed to an incredible growth in extracurricular, creative, and student-led initiatives. I want to share something more. Just recently, yesterday, Zabist University hosted a gigantic youth conference in which more than 20 premier universities of Karachi participated. And Zabist became a center of attention, and it was all a brainchild of this leader that I'm talking about. Aap sabki bharpoor taaliyon mein, with a big round of applause, please welcome Mr. Asim Raza, President of the Zabist Student Council. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone here. On behalf of Zabist Student Council, I welcome with great honor and pleasure Dr. Suleiman Sheikh, founding member Zabist University, Dr. Talib Lashari, member of Board of Governors Zabist University, Mr. Imtiaz Qazi, officiating president Zabist University, Dr. Altaf Mukati, Vice President Academics, Madam Nasreen Haq, Vice President Development and Finance, HODs, Deans, all the respective PMs, faculty, staff, and everyone present here. A very warm welcome and good morning, everyone. Every 14th August, we celebrate a country that our forefathers fought to create. But today, I want to ask a very different question. What are we doing with the country that they gave us? Because Pakistan does not have a shortage of young people today. According to 2023 census, 66.6% of our population is below the age of 30, which makes almost 160 million Pakistanis. That is a very huge number. But think about that. We are not the future of Pakistan. We are the present of Pakistan. And I learned that lesson not from a textbook, but from leadership itself. When I began my first tenure last year, and at the Zabist Student Council, we didn't have unlimited resources. We faced restrictions, uncertainty, with the regional situation that was faced due to US-Iran war, the lockdown in the university, and not having the activities on campus. But we chose not to ask what we can do under these circumstances. We asked what we can do despite them, and the question changed everything. We delivered 20+ events and initiatives, including 7+ in summer alone and 5 major events. We represented Zabist at 15+ external platforms and 10+ recognitions, and generated up to 1 million rupees in sponsorship support, including 2 fully sponsored initiatives. And above that, I got selected at a CGYC Council General Youth Consulate after a rigorous selection process from universities all across Pakistan. This is a 9-month internship by the government of United States of America to work directly with American business officials on real business projects. And I'm so glad that this opportunity and the leadership that I showed there was all that I got during my tenure at the Zabist Student Council. But my proudest moment wasn't a number, wasn't these all. It was just yesterday. We brought together 100+ participants and student councils and societies from across 15 different universities across Karachi at the Karachi Student Leadership Summit. And I watched students all sit at one table, not asking
who is responsible for the problem, but asking, what can we do about it? This is Pakistan I want to see. This is Pakistan we all need to see. Because leadership is not about just having a title. Leadership is about taking ownership. Quaid-e-Azam reminded the youth of Pakistan that they were the real makers of Pakistan and called upon them to set up an example of what young people can do. And perhaps Allama Iqbal said it even more powerfully. दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है. So what does our generation need to do? We don't all need to become politicians. We need to become problem solvers. If you are a student, master your craft. If you are an entrepreneur, create opportunities. If you are a leader, build people, not followers. If you see injustice, speak up. If you see a problem, don't wait for someone else to solve it. Start where you stand. Because a nation is not transformed only in parliament. It is transformed in classroom. It is transformed in laboratories. It is transformed in businesses. It is transformed in this community. It is transformed in these institutions. And it is transformed in the student councils and in the character of its young people. Our forefather gave us Azadi. Our generation must give Pakistan direction. And this is my vision for this student council, for our university, and for every young Pakistani standing in this room and beyond this room. Not a generation that complains about Pakistan, not a generation that waits for Pakistan to change, but a generation that looks Pakistan and says, मैं क्या कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए? Because the journey from Azadi to a new Pakistan will not begin someday. It began with us. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Asim, for those very visionary, remarkable insights that you shared with us. अली, आज पाकिस्तान की बात हो रही है तो एक बात पूछनी थी. जी जी बिल्कुल पूछिए. हम पाकिस्तानीज़ हर चीज़ में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? सिंपल सी बात है लेना, हम वो कौम हैं जो गूगल मैप्स को भी कह डालती है कि नहीं मुझे रास्ता मालूम है, यू स्टे देयर. और पाकिस्तानी घर में सबसे डेंजरस सेंटेंस, आज मेहमान आ रहे हैं, उसके बाद पूरा घर ओलंपिक्स बन जाता है. ये तो है लेना, नो डाउट. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी जितने भी फ़नी, जितने भी ड्रामेटिक और थोड़े से पागल क्यों ना हों, लेकिन दिल से हम सब पाकिस्तानी हैं. जी जी बिल्कुल. एक कौम आज़ाद कब होती है? आज़ादी होती क्या है? क्या सिर्फ एक झंडे का उतरना और दूसरे का लहराना आज़ादी, या सरहद का बदल जाना आज़ादी? सवाल तो ये है कि इकबाल ने कहा था, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा. तो फिर ये तारीखी क्यों? जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया वो एक ख्वाब लेके चले, एक ऐसा मुल्क जहां इंसान को इंसान होने पर अहमियत दी जाए, जहां इंसान तब बोले जब उसका हक मिला जाए, जहां इंसान को इज्जत और एहतराम से देखा जाए. फैज साहब ने कहा ना, बोल कि लब आजाद है तेरे. अब सवाल ये उठता है गिल्ला कि हमने आज़ादी को अपना हक समझ लिया. हम इस कौम के वारिस हैं, लेकिन वारिस होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ हिस्सा मिला है, हमें जिम्मेदारी भी मिली है. हमने आज़ादी को एक दिन समझ लिया. हम आते हैं, जमा होते हैं, एक झंडा, एक नारा, चंद तस्वीरें, और अगले दिन वही मक्र, फरेब, झूठ और एक जुमला, मुझे क्या, कोई मरता है, मुझे क्या, जुल्म होता है, मुझे
सच बोलने वाला अकेला रह जाए मुझे, और इस चुप के सन्नाटे में एक सदा बुलंद पाकिस्तान जिंदाबाद। फैज साहब ने कहा ना, बोल के लब आजाद है तेरे, तो हम बोलते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमने आजादी को हक समझा है, जिम्मेदारी नहीं। हम जिद्दत पसंद तो हैं, मगर अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हम इंसाफ पसंद तो है, मगर अपने लिए इंसाफ को बदल देते हैं। हम इंसान की करप्शन पर बात तो करते हैं, मगर एक छोटी सी बेईमानी पे कहते हैं अबे इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। शिकवे जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते हैं, मगर शम्मा जलाए कौन? देखिए जनाब, अगर हम जुल्म और जबर के खिलाफ खामोश रहें, जुल्म के आगे सरनिगू हो जाएं, तो बहुत माजरत, हमें तोड़ने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, हम आप ही काफी। पाकिस्तान हम और आप, हमें अपना दुश्मन नहीं बनना, हमें आवाज उठानी। मैंने कहा ना, बोल के लवादात है तेरे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहानी मायूसी पर खत्म हो जाती ना? जब तक सवाल जिंदा है तब तक उम्मीद जिंदा है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवाल बहुत है, जवाब एक, आवाज। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद ही नहीं, बल्कि मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या आपका किरदार पाकिस्तान को जिंदा रखेगा? हाँ बिल्कुल। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में जिंदा ना रहें, बल्कि पाकिस्तान के लिए जिंदा रहें, तो बिल्कुल हमारा किरदार भी पाकिस्तान को जिंदा रखेगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए कि अगर हमारा वतन कभी हमसे पूछे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो हमारा जवाब क्या होगा? आए मैं आपको एक तालिब इल्म की कहानी सुनाता हूं। हम अक्सर बच्चों से पूछा करते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या फिर एक पायलट। मगर कभी हम उनसे ये नहीं पूछते तुम बड़े होकर किस तरह के इंसान बनोगे। स्कूल हमें हर चीज सिखाता है, साइंस सिखाई, हिसाब सिखाया, तहरीक सिखाई, तहजीब सिखाई, जबान सिखाई, लेकिन हर क्लासरूम की दीवारों के दरमियान एक और सबक छुपा हुआ था जो हमारे किताबों में नहीं, हमारी जिंदगियों में दिखा था। एक बिल्कुल आम सी सुबह थी, स्कूल की घंटी बजी, राहदारियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कोई अपने होमवर्क पर बहस कर रहा था, तो कोई अपना लंच बॉक्स घर भूल गया था, और कोई कल के क्रिकेट मैच की प्लानिंग कर रहा था। सब कुछ आम सा लग रहा था, जब तक वो आम सा माहौल आम ना रहा, सब कुछ एकदम से बदल गया। हर खौफ की भी एक आवाज होती है जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। वो सब कुछ सहम सा गया, वक्त धीमा पड़ गया, सवालों से पहले जवाब आ गए, चेहरे बदल से गए। उस एक लम्हे में मुझे वो बात समझ में आई जो मुझे मेरे किताब ने कभी सिखाई नहीं। मेरे अंदर मेरी हिम्मत का होना, डर का ना होना हिम्मत नहीं होती। अपनी जान से पहले किसी और की जिंदगी को चुन लेना हिम्मत होती है। लोग समझते हैं कि वतन से मोहब्बत सिर्फ जंग के मैदान में साबित होती है, लेकिन कभी कभी उसकी इब्तिदा एक स्कूल के रास्ते से भी होती है। हर बच्चा जिसने स्कूल बैग अपनी पीठ पे उठाया हुआ है, वो सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई रुतबा नहीं, पर मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी हिम्मत, मेरा सच के साथ खड़े होने का फैसला। जाने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आज किसी क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है,
तो हम बाकी लोग उस मुस्तकबिल को संवारने के लिए क्या कर रहे हैं? बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी। ये शेर जब मैंने पहली बार सुना तो एक सहाफी की हैसियत से नहीं सुना, क्योंकि शायद उसी दिन मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि मुझे मेरी पेशा वराना जिंदगी का रास्ता मिल चुका। क्योंकि सहाफत सिर्फ इस काम का नाम नहीं कि लोगों को खबर दी जाए, उनको आगाह किया जाए, बल्कि सहाफत का नाम लोगों को आगाह करने के साथ साथ उनसे पूछना है कि सच क्या है। फिर जब मैं सहाफी बना तो मुझे लगा कि मेरा ये कैमरा मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरा सबसे बड़ा सच होगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि कैमरा तो सिर्फ वही दिखाता है जो हम उसे दिखाना चाहें या जिस तरफ हम इसका मुंह मोड़ना चाहें। कई सालों तक मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, सुर्खियों के पीछे, ब्रेकिंग न्यूज के पीछे, सियासी तनाज़ात के पीछे, हादसात के पीछे। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसे गांव भेजा गया जिसका नाम शायद कभी किसी ने सुना ना था, कभी खबरों में नहीं आया। मुझे बोला गया कि वहां जाकर वहां मौजूद गुर्बत को अपने इस कैमरे में अक्सबंद करके आओ। मैं चला गया। गांव पहुंचते ही मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। वो मुझे अपने घर ले गया। वहां मौजूद 2 रोटियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया और मुझे खाना दिया। थोड़ी देर बाद मेरी मुलाकात एक बहुत ही अफसरदा बेवा औरत से हुई। उसके कहने के मुताबिक सैलाब ने उससे सब कुछ छीन लिया था। वो थोड़ी देर बाद मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, जब तक हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम अब भी अमीर हैं। गांव से शहर वापस आने से पहले मैंने उसी बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा जरा एक बात तो बताएं, इस गांव में ऐसा क्या है जो आज भी आपको इस मिट्टी से इतना बांधे हुए है? उन्होंने खेतों की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, वतन की मिट्टी इसलिए कीमती नहीं होती कि वो बेऐब, वतन की मिट्टी इसलिए कीमती होती है कि वो तुम्हारी होती है, तुम्हारी शनाख्त का हिस्सा है। थोड़ा आगे जाकर मैंने कुछ बच्चों को देखा। वो एक टूटी फूटी बैट से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन हर एक रन पर ऐसे खुश होते जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मैं ये सब देखता रहा खामोशी से। हालांकि मेरे पास मेरा कैमरा मौजूद था, लेकिन शायद पहली बार मेरे पास अल्फाज नहीं थे। I was out of words। फिर मैं शहर वापस आया और वही शोर, वही सुर्खियां मामूल के मुताबिक चलती रही। लेकिन शायद उसी दिन से वो गांव मेरे दिल और मेरे दिमाग में कहीं रह गया। उस गांव की गुर्बत से मुझे अंदाजा हुआ कि गुर्बत खाली जेब से नहीं होती और दौलत भरी हुई तिजोरी से नहीं मिलती, वो तो लोगों के रवैयों में होती। और मुझे इस चीज का भरपूर अंदाजा हो गया कि सहाफी होने के साथ मेरा काम है कि मैं खबर तो दूं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल करूं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा था उस सब में इंसान किधर था, इंसानियत किधर थी। तो फिर सवाल ये है कि जब हर तरफ बोलने वाले, शोर मचाने वाले इतने ज्यादा हैं, तो क्या हम में से कोई एक ऐसा है जो खामोशी से सिर्फ उन बेआवाज कहानियों को सुन सके? कोई है जो खामोशी के ताले तोड़ सके? यही लोग तो समझते हैं कि बहुत आसान है अपना वतन छोड़ देना, मगर सच ये नहीं, क्योंकि अपना वतन छोड़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अपनी माँ की आवाज को पीछे छोड़ देना। लेकिन वो आपका साथ कभी छोड़ती ही नहीं। वो रहती है आपके खाने के जायकों में, वो रहती है आपकी जुबान में,
वो रहती है उन रुपयों में जो कि आप भेजते हैं अपनी बहन की शादी के लिए, माँ की दवाई के लिए और भाइयों के स्कूलों की फीसों के लिए। लोग आज हमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी कहते हैं। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी तो हैं पर पाकिस्तान में नहीं, जैसे कि हम इस पाकिस्तान का कभी हिस्सा ही नहीं थे। मुझे याद है वो दिन जिस दिन पहली बार मैं किसी दूसरे मुल्क में लैंड हुआ, जहाँ के लोग मेरे नहीं थे, जहाँ का मौसम मेरा नहीं था, जहाँ के खाने मेरे नहीं थे, लेकिन उस मुल्क में मैंने वो सब किया जो कि मैं कभी शायद अपने मुल्क में भी ना करता। मैंने वहाँ ओवर टाइम किया, डबल ड्यूटीज की, सर्दी की रातों में मैंने नाइट शिफ्ट्स की, और ये सब करने की वजह मेरा एक ख्वाब था, मेरी एक मंजिल थी, और वो मंजिल थी पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं कोई एक महल नहीं देख रहा था, ना ही मेरी कोई मंजिल ये थी कि मुझे पाकिस्तान में कोई शान शौकत चाहिए। मुझे चाहिए था पाकिस्तान में एक छोटा सा घर, ताकि कल को मेरे बच्चे ये न कहें कि हम बेघर हैं। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने मुझे पाकिस्तान में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया। जब उसकी फाइल मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा कि जन्नत का एक कोना इस वक्त मेरे हाथ में है, जहां हरे भरे पार्क, जहां पर मॉडर्न स्कूल्स, खूबसूरत मसाजिद, दरख्तों के नीचे खेलते हुए बच्चे, वो दरख्त जिनके अभी बीज भी ना बोए गए थे। बस यही जज्बात मुझे ले डूबे और मैंने उस फाइल पर दस्तखत कर दिए, और फिर मैं इसी भागदौड़ में इसकी इंस्टॉलमेंट्स भरना शुरू हो गया। लेकिन पता नहीं कब वो जगह जिसने एक मोहल्ला बनना था सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर रह गया। पता नहीं कब वो जगह जहां जाकर मैंने रहना था सिर्फ पलंदों पर लिखे नंबर में तब्दील होकर रह गया। आज मैं आपसे कोई शानो शौकत नहीं मांगता, या मैं ईंट और सीमेंट की बोरियों के पैसे नहीं मांगता, मैं मांगता हूं अपनी मेहनत का फल। आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि बहुत आसान है इन संगे मरमर की जमीनों पर चलना, जिनको बनाने में शायद मजदूर के कितने सालों का पसीना ढल जाता है। आज आप जैसे लोग मुझे मशवरा भी देते हैं, कहते हैं कि वहीं क्यों नहीं बस जाते तुम लोग, तो मैं बस उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ और ये कहता हूँ, सुकून, क्या सुकून के लिए मुल्क बदला जाता है? क्या सुकून के लिए कोई अपना वतन छोड़ता है? आज जब मुझसे उस जगह के लोग ये पूछते हैं कि तुम कहां से हो, तो मैं ये बिल्कुल सीना तान के कहता हूं कि हाँ, मैं पाकिस्तान से हूं, और बस उसी पाकिस्तान के लिए मैं इतना दुआ गो भी हूं कि जब मैं इस पाकिस्तान में वापस आऊं तो मेरा घर मेरी दस्तरस से इतना दूर ना हो जितना कि आज पाकिस्तान इंसाफ की दस्तरस से दूर है। हटो, बंद करो कैमरा। सर आए सर। यार मुझे ये समझ नहीं आता हमारी जरूरत क्या है। ठीक है, तुम जाओ। लोग समझते हैं कि इख्तियार इंसान बदल देता है, लेकिन खैर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इख्तियार कभी भी इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसकी असलियत सबके सामने गया। सियासत में आने से पहले मेरे पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि मेरे पास सवाल ही सवाल है। जब मैंने सियासत में आने का ऐलान किया तो लोग हंस दिए, लेकिन वो बुरी नीयत से नहीं, जैसे कोई तंबीह कर रहा।
जैसे ईमानदारी एक ऐसी बीमारी है जो पार्लियामेंट की दीवारों में रह ही नहीं सकती। मैं सियासत में ताकत कमाने के लिए नहीं आया था, मुझे ताकत पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सियासत में इसलिए आया था क्योंकि मैं थक चुका था उन गरीब शरीफ लोगों की शिकायतें सुनकर, जबकि बेईमान लोग हमारी खामोशी की बुनियाद पर बिना दफ्तर में बैठे हुकूमत कर रहे थे। जब सियासत में आने से पहले मुझे लगा कि इलेक्शन जीतना मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन मैं गलत था। मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तो अपनी शख्सियत को कायम रखना साबित हुआ। हर रोज कोई ना कोई आके मुझे कहता है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, यहाँ दस्तखत करो, वहाँ दस्तखत करो, ये मत कहो, वो मत कहो। ये सुनकर मैं सोचता हूँ अक्सर कि ये सिस्टम हमने बनाया था या फिर सिस्टम हमें बना रहा था। लोग समझते हैं कि बदनवानी करोड़ियों से शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं। बदनवानी खामोशी से भी शुरू होती है, एक ऐसी मीटिंग से जहां कोई एतराज नहीं करता, एक ऐसे वादे से जहां लोग बोलते हैं कि आज नहीं लेकिन कल बोलेंगे। और इसी तरह मैंने कई कौमों को अपनी आवाज़ खोते देखा है। मैंने कई ईमानदार बासूल अफसरों को इस सिस्टम के साथ एडजस्ट करते देखा है, हकीकत पसंद बनते देखा है। मैंने सच को सौदाबाजी बनते देखा है, मैंने इंसाफ को सिर्फ कागजी कार्रवाई बनते देखा है। तो लोग आके मुझसे पूछते हैं अक्सर कि एक सच्चा ईमानदार इंसान वाकई कुछ बदल सकता है। अब खैर ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जब भी एक सच्चा ईमानदार इंसान हथियार डालता है तो ये तारीख उसकी कुर्सी को किसी और से बदल देती है। मैं अक्सर अपने दफ्तर में सबके चले जाने के बाद बैठता हूँ, कौमी परचम की तरफ देखता हुआ खुद से सवाल करता हूँ कि क्या हमारे बानी मुल्क ने भी ये तसव्वुर किया होगा? उन्होंने इख्तियार का ख्वाब देखा था या फिर जिम्मेदारी का? उन्होंने ओहदे का ख्वाब देखा था या फिर खिदमत का? सियासत कभी भी पैसा कमाने का सबसे छोटा जरिया थी ही नहीं, बल्कि ये तो कुर्बानी का सबसे लंबा सफर होना चाहिए। पर ये बात शायद हम भूल चुके हैं। हम ये भी भूल चुके हैं कि क़यादत की पैमाइश कभी भी कॉन्वॉय की लंबाई से नहीं होती, बल्कि हर उस आम इंसान की ज़िंदगी से होती है जो आपके ओहदे की वजह से थोड़ी बहुत आसान होती है। मैं लोगों से नहीं लड़ रहा, मेरी लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। मैं उस सोच से लड़ रहा हूँ जो कहती है कि कुछ बदल ही नहीं सकता, क्योंकि नाउम्मीदी बदुमानी की सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक हिम्मत जिंदा है उम्मीद जिंदा है, जब तक ईमानदारी जिंदा है उम्मीद जिंदा है, और जब तक कोई भी नई नस्ल हमारे बहानों की विरासत को लेने से इनकार करती है तब तक उम्मीद जिंदा है। हो सकता है कल को मेरा ओहदा चले जाए, या हो सकता है मैं कल को इलेक्शन ही ना जीतूं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैंने अपने स्कूल खोलिए तो मैं अपना मुल्क ओहदा खोने से बहुत पहले खो चुका हूँ। बस जाते जाते एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि एक वतन की सबसे ज़्यादा पावर वाली कुर्सी सबसे ज़्यादा आरामदेह होने के लिए नहीं होती, बल्कि सबसे ज़्यादा जवाब देने के लिए। शुक्रिया। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बहुत खूब, Elena. Now that, ladies and gentlemen, was a story that made us think, made us question, and perhaps even look at something very ordinary that we often take for granted from a completely different perspective. जी बिल्कुल अली, ऐसा ही है। और बहुत ही उम्दा और मुतासर कुन परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, और हमारे परफॉर्मर्स ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज़ और अहसन तरीके से अपना किरदार निभाया। और मैं चाहूँगी कि हम अली को भी सराहें, जो मेज़बानी के साथ साथ इन्होंने अपना खेल में भी एक बेहतरीन किरदार निभाया। तो एक बार भरपूर तालियाँ। Thank you very much, Elena. Thank you, everybody. But behind every performance,
there is a team, right? A big round of applause to the entire team. And I'd like to call them one by one again on stage. Together, they'll come across the creative individuals behind this magnanimous performance, starting off by the leader, Sir Taha Khan, an incredible coach, a wonderful creative individual with a vast career in theatre and acting, a proud Pakistani, someone who has made Pakistan proud with his international recognitions and movies and acting career. So thank you very much for your wonderful leadership. This was a little eccentric idea, but I am so glad that we had you on board so we could proceed with it. With that, I'd also like to call the pillars, the very flamboyant performers. Ladies and gentlemen, put your hands together firstly for Asad Jahangir from BS English, a third semester student. Put your hands together. You were quite an extraordinary student, Asad. Put your hands together for Syed Midhat Abbas Zaidi from BS Media Sciences, 5th semester. Please put your hands together for Malik Asad from BS Artificial Intelligence, a 2nd semester student, aka the foreign Pakistani. Then we have, last but not the least, the politician. Ladies and gentlemen, with your big round of applause, are you here? Please put your hands together for Adil Ali from Computer Sciences, 3rd semester. And once again, thank you to the entire team for presenting such an extravagant endeavor. We are truly grateful. Ali, आप भी इसका हिस्सा हैं। Thank you, sir. And from the world of theatre, we now move into a world where emotions find their voice through words. शायरी वो ज़ुबान नहीं है जो दिल की बात दिल तक पहुंचा देती है. So please put your hands together for Mr. Saddam Hakim. Please put your hands together for Mr. Saddam Hakim, a 2nd semester from the language department. अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ किया है, एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी ज़िंदगी का हिसाब था, मेरी जुस्तजू के वो बरक्स थी, मेरी जुस्तजू के वो बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो गुमा था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा न था, खुदा था वो खुदा के जिसने ज़ुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो ज़ुबान जिसे ना चला सके, वो दिल जिसे ना लगा सके, वो चाह जिसे ना मना सके। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकां तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नज़र पे उबूर दूं, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को तू माफ़ कर, मेरे इस कलाम को तू माफ़ कर। Take a bow, Saddam. Take a bow. Thank you very much. An incredible student from BS English 2nd semester. Thank you, Saddam. And with that, I'd like to call another Urdu visionary. He's very passionate about the language itself. Please put your hands together for Syed Midhat Abbas Zaidi.
आदाब। 4 मिसरे पेश की देता हूँ पहले, फिर एक नज़म के चंद अशार। बस एक ही शेर सुन लीजिए पहले। हजार लम्हे हजार वादे, हर एक पे रोना तो मुझसे सीखो। हजार लम्हे हजार वादे, हर एक पे रोना तो मुझसे सीखो। खुशी के लम्हों को याद करके उदास होना तो मुझसे सीखो। खुशी के लम्हों को याद करके उदास होना तो मुझसे सीखो। 4 मिसरे और बस, फिर बहुत माजरत। जिक्र गर्वो बहार का करते, जिक्र गर्वो बहार का करते, हम भी ज़ख्मे जिगर हरा करते, हम भी ज़ख्मे जिगर हरा करते। शेर देखिए, भूलने को भी जी नहीं चाहे, भूलने को भी जी नहीं चाहे, इतना अच्छा नहीं हुआ करते। बस अब मैं पाकिस्तान के हवाले से एक नज़म पेश कर देता हूँ। एक नज़म है, अक्ल है असीर कफस। एक दुनिया के वसी और हुई, पूरी दुनिया पतेरी पंजए सद सैद में है। जश्न आज़ादी मनाता है बहुत शोर से तू, बदन आज़ाद है पर अक्ल तेरी कैद में है। बदन आज़ाद है पर अक्ल तेरी कैद में है। नस्ल दर नस्ल ही जब्र मुसलसल में रहे, नस्ल दर नस्ल ही जब्र मुसलसल में रहे। गर ज़बां चुप है तो वो काहे को नादिम होगा, गर ज़बां चुप है तो वो काहे को नादिम होगा। गोया हाकिम पर ये इल्ज़ाम तराशी है अबस, जैसी है कौम फ़कत वैसा ही हाकिम होगा। जैसी है कौम फ़कत वैसा ही हाकिम होगा। तू ख़वातीन की तालीम को समझे है बार, तू समझता है कि कुल इल्म तो घर बार में है। तू समझता है कि आज़ाद है तू भी, लेकिन अब तलक जुल्म की जंजीर गराबार में है। बर्क गिरती है खिज़ां छाई बहारां रुखसत, इस गुलिस्तान की बर्बादी पर रोते रहिए। कोई इक़दाम उठाने से गुरेज़ा ही रहें, आप एक काम करें चैन से सोते रहिए। दुख मुझसे देखा नहीं जाता है ये उजड़ा गुलशन, मैं चला जानिब मंजिल तो चलो साथ चलो। चुप तेरी आबो हवा, चुप ही तेरी उनकी ग़िज़ा, कल तो उठना ही है तुझको तो चलो आज उठो। बस के साबित कदमी होगी यहाँ पर दरकार, हुर कोई आए तो उसको भी लिए साथ चलो। और दुश्वारी हर एक गाम पे होवेगी यहाँ, याद रखना कि रहे हाथ में बस हाथ चलो। मक्ते की ज़हमत, अश्क साहब कदम अच्छा है पर ये ध्यान रहे, जो बुज़ुर्गों की रविश थी बस उसे याद करें। तोड़ दी जाए बस अब जुल्म सितम की जंजीर, बदन आज़ाद है अब अक्ल भी आज़ाद करें। बहुत शुक्रिया। Give it up for Sayyid Midhat Hussain Zaidi, a 5th semester student from the Department of Media Sciences. Thank you very much, Midhat, for your extremely wonderful regards and remarks on this very special occasion. Ladies and gentlemen, as we continue this celebration of the 79th Independence Day of Pakistan, we now come to a moment of particular honor and significance. It is our privilege to have amongst us our Honorable Chief Guest, Dr. Talib Lashari, who is the member Board of Governors, Zabist University, and the chair of its academic committee as well. He is a public health expert with masters in health policy and management from Aga Khan University that he attained in 2003, while he pursued his MBBS in 1991. Currently,
Dr. Talib Lashari is a technical assistant to Sindh Population Welfare Department and the Population Wing at the Federal Ministry Health, Islamabad, and is, of course, a member Board of Governors of Zabist University. Please put your hands together and welcome him with a big round of applause. After these very rich contributions by the young people, delivering a speech is a very gigantic task for me. But definitely we have to say a few things about the Independence Day. Dr. Suleiman Sheikh, advisor to the chairperson of the Board of Governors. Qazi Saab has left, I think, Imtiaz Qazi Saab. He will be joining us, who is interim or officiating president of the university. Mr. Shams Jafrani, secretary of the Board of Governors. Professor Dr. Altaf Mukati, vice president, academics. Ms. Nasreen Haq, Vice President, Development and Finance. Dr. Saab, Head of the Public Health. Students' Council, especially who are here. Dear faculty members and students, Assalamu alaikum. And happy Independence Day. Today, at the eve of 14th August, which falls tomorrow, it's day with full of joy and celebrations. But every year on this day, we put up flags, we sing anthem, and we call it celebrations. And indeed it is. But that is not all about it. 79 years ago, on this day, a country was born. And that was born for a reason. Today, we don't just mark a date on the calendar. We renew our commitment to that reason. And we ask ourselves how far we still have to go to live up to it. Ladies and gentlemen, that idea or the reason of Pakistan was first given clear shape at the Lahore in March 1940 resolution when All India Muslim League resolved that the Muslim majority regions in India should be grouped into states where they could live according to their own faith, culture, law, and govern themselves as free and equal citizens. After that, 7 years later, on the eve of Pakistan coming into being, the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah stood before the first Constituent Assembly on 11th of August. Is it working? On 11th of August, may I use this? Yes. On 11th of August, 1947, and he told exactly what kind of country it was meant to be. He spoke of a Pakistan where a citizen's faith would be matter between that citizen and their God, and no business of the state, where a Hindu would cease to be a Hindu, Muslim would cease to be a Muslim, not in religious sense, but in political sense, as equal citizens of one state, with equal rights, privileges, and obligations.
He envisioned a Pakistan built on a justice, fairness, and rule of law. The vision of a state that protects its minorities and governs by law rather than by whim remains as unfinished as it was inspiring on that first day. Between that promise and today lies a long struggle to uphold the spirit of Pakistan. It has not been an easy journey towards democratic, federal, constitutional Pakistan the Qaid envisioned. We lost him in 1 year of independence. Later on, we saw several unconstitutional rules in 1958, in 1977, in 1999, and each time democracy interrupted, each time constitution suspended, each time masses, lawyers, students, and political workers left to fight their way back to a representative rule. Ladies and gentlemen, at the center of that struggle stand leaders who paid a heavy price for that steadfastness and whose ideals still deserve to guide us. For example, Zulfikar Ali Bhutto gave Pakistan its first unanimously agreed constitution of 1973, a federal parliamentary democratic constitution that remains the law of the land today. He asserted Pakistan's sovereign right to defend itself and to chart its own course in the world. And when the democratic order he had built was overthrown, he paid for defense of a democratic supremacy with his life. His execution in 79 did not end the idea he stood for. It made that idea a cause. Right after 4 years of Z.A. Bhutto's martyrdom, a mass uprising called Movement for Restoration of Democracy, MRD, proved that people of Pakistan stand for democracy and equality. Shahid Benazir Bhutto carried that cause forward and became the first woman to lead the government of a Muslim majority country, not once but twice. She stood for a Pakistan that was moderate, pluralistic, and forward-looking. Later on, we have seen during 2008 and 13 that 18th constitutional amendment was passed and enacted, which voluntarily stripped the presidency of sweeping powers and authority, which accumulated under the unconstitutional rules, and authority was handed over to the parliament and to the provinces. That amendment stands today as one of the most consequential acts of democratic culture in our history. Similarly, other young leaders, and I would say the scores of people like you, professionals, writers, the people who acted on this stage a while ago, scientists, they all are contributing towards better future of Pakistan today. This commitment to the common citizen did not end. This is a cause that every party, every institution of Pakistan must uphold. Answer is not centralism
or any further divisions, but good governance, rule of law, economic reforms, and more powers to the grassroots levels. And Pakistan can only prosper with eliminating poverty, women economic empowerment, engagement of youth and students. Ladies and gentlemen, consider the arithmetic of this moment. Our president of the Student Council also mentioned that more than 64% of the population consists of young people under the age of 30. It is the single largest fact about Pakistan's future. However, a high number of youth is out of schools. Others work in informal sector, but a sizable number is in universities and colleges like here. That is why universities matter so much right now. A university is where a demographic fact turns into a demographic dividend, which means imparting education and skills and translating youth bulge into productive citizens. This is the single biggest contribution universities are making to build a prosperous Pakistan. And Zabist University is one of those. We at the Zabist University are cognizant of the fact that the world our students are entering is changing faster than any point in our history. Artificial intelligence, climate change, a shifting global economy are realities of today. They are the domains or upheavals today's graduates will have to navigate immediately. Our task is to make sure our university equip them for that terrain, rather than for a world that no longer exists. And this is the first and the foremost task ahead of us on this Independence Day. On this 79th Independence Day, let's not simply remember the founder and the leaders thereafter. Let us finish what they started, a democratic, progressive Pakistan, well educated with equal opportunities for women, minorities, and youth. Today, youth and students have a historic responsibility, that is to foster unity, peace, and mutual trust, irrespective of any language, caste, faith. So let us dismantle hatred and build trust. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर तालिब लाशारी साहब। और आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज़ है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। Thank you very much, sir. Our esteemed Honorable Chief Guest, Dr. Talib Lashari Saab. On behalf of the entire Zabist community and the Zabist Student Council, I thank you for joining us on this very special occasion. And now, ladies and gentlemen, the moment, I guess, that we've all been waiting for. We've celebrated through words, we've celebrated through poetry, we've witnessed incredible performances. और अब वक्त है इस महफिल में सुर, साज और जोश को भर दिया जाए। So get ready to clap, sing along and let the music take over, because our amazing musical performers are ready to set this stage on fire.
तो फिर देर किस बात की है? Let's hear the loudest, most thundering round of applause for Muiz Qadir, BScs, Taha Kaisar, BSms, Ashad Javeri, BBA, Sarosh Ayaz, BS Biotech, Anasha Shakil, BS Psychology, and last but not the least, Taha Mazhar from BBA. Guys, you can take over now. Let's see what you have for us. Surely. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ नहीं आ रही, आज़ादी का दिन है। अस्सलाम वालेकुम। Okay, so I'm Muiz Qadir from Zabis Musical Arts Society, and with me our mentor, coach Sir Naeem Shah. With me Anasha Shakil, and a very talented Taha Kaisar, and with me Sarosh and Ashad, and Julius Marcus on Dholak. So we are performing a medley which is basically a fusion of 4 languages. So hope you'll join it. सारे क्लैप करेंगे एक दफा मेरे साथ। ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा। अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आओ सामने, आओ सामने, कोलों दी रुस के नालंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आओ सामने, आओ सामने, कोलों दी रुस के नालंग माहिया। यहाँ सिंधी कौन कौन है? आवाज आनी चाहिए सिंधियों की। सोएणा माणू प्यारा माणू, सोएणा माणू प्यारा माणू, ब्या भी 1000 सिंधी माणू, सिंधी माणू से बता लखन में, सोएणा माणू प्यारा माणू। मोर थोटले राणा, मोर थोटले, मोर थोटले राणा, मोर थोटले, मोर थोटले राणा, मोर थोटले, मोर थोटले राणा, मोर थोटले। ओ राणा राणा मोर भले पोटले गुजर जो, राणा राणा मोर भले पोटले गुजर जो। मोर थोटले राणा, मोर थोटले, मोर थोटले राणा, मोर थोटले। नथ घड़ाया मसवड़े अल्लाह लख राणा, नथ घड़ाया मसवड़े अल्लाह लख राणा। ओ राणा तुम्हारा डथीना, राणा तुम्हारा लख दीना, राणा तुम्हारा डथीना, राणा तुम्हारा लख दीना। हो सटन मामर जे कुल्ले, सटन चाचे जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले प्योटले गुजर जो। मोर थोटले राणा, मोर थोटले, मोर थोटले राणा, मोर थोटले। पख्तून कौन कौन है यहाँ पे? पश्तो भाई किधर है मेरे? कोई नहीं है। अरे अरे अरे, माता फजबीना खुल खंदल मकावा मरबामी के जमा जाना ना मरबामी के। माता फजबीना खुल खंदल मकावा मरबामी के जमा जाना ना मरबामी के, जमा जाना ना मरबामी के। जिचे दस्ता सिर गोदा गो
माता फजबीना कुल कंदल मकावा मरबाबी के जमा जाना ना मरबाबी के माता फजबीना कुल कंदल मकावा मरबाबी के जमा जाना ना मरबाबी के जमा जाना ना मरबाबी के जमा जाना ना मरबाबी के वशमल्ले 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 बाबुले सीरे शिमा बे मल्ले वशमल्ले 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 शिमा बे मल्ले मशंक माया विमले मनद माया विमले मशंक माया विमले मनद माया बाबुले सीरे शिमा बे मल्ले वशमल्ले सीरे शिमा बे मल्ले वशमल्ले बाबुले सीरे शिमा बे मल्ले वशमल्ले सीरे शिमा बे मल्ले वशमल्ले बाबुले सीरे शिमा बे मल्ले Thank you so much. Thank you, everyone. For the next performance, I would like to call Anasha Shakil. Please give a big round of applause. So this song is patriotic and I hope कि आप सब में से कुछ को तो आता होगा तो आप लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे. जुग जुग जिए जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन लब पे दुआ है दिल में लगन हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है इन गुल रंग फिजाओं में तुझसे ही उजियारा है तेरा हर एक जर्रा तेरा हर एक जर्रा है किरण हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन लब पे दुआ है दिल में लगन हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी तेरे दम से हम जिंदा तुझसे है पहचान मेरी तुझ बिन
Thank you. How was it, guys? Okay, so I would like to call now myself again. Okay, so मेहदी हसन का बहुत ही प्यारा नगमा है कि ये वतन तुम्हारा है, सबने सुना होगा. So उसकी few lines मैं गाना चाहूँगा. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वाह इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के. सारे साथ क्लैप करेंगे. इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का. नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों ने अपना आप पहचानो. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वाह इसके. Thank you so much. Okay, so I would like to call now Taha Kaisar. Please give a big round of applause. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसके बाद आप मुझे बुला लेंगे, लेकिन चले. एक बहुत मुश्किल कलाम इन्होंने मुझे दे दिया है गाने को, जो सवाल मैम कैसी हैं आप? बहुत मुश्किल है गाना, लेकिन बहरहाल एक कोशिश करूँगा, गलतियाँ माफ़ फरमाइएगा. जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी. तंज़ीम इत्तेहादी कायद का पैगाम, तंज़ीम इत्तेहादी खाक पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां. जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी. जुनून से और इश्क से मिलती है
इज्तिहाद वीज़ा मोमिन की पहचान तौहीद इज्तिहाद वीज़ा जबर सब्र इम्तिहान ज़ाहिर गैब का निशान जबर सब्र इम्तिहान ज़ाहिर गैब का निशान ज़मीने पाकिस्तान जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी मिलती है आज़ादी आज़ादी। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, बहुत नवाज़िश, बहुत नवाज़िश। Thank you so much, Taha. Now it's time for some Jazba and Junoon. So I would like to call Taha Mazhar. Please give a big round of applause. जज्बा जुनून तो हिम्मत ना जज्बा जुनून तो हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही इतना तो है तुम पे यकीन है जज्बा तो हिम्मत जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी न भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा। क्या बात है तहा, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे एक दफा दोबारा जितने सिंधी हैं जरा शोर कीजिएगा। एक सिंधियों के लिए थोड़ा ट्रिब्यूट है। सो ओ माण्हुन में एक माण्हू जेको महफ़िल जो आराणो
जेके जाणू त सब सुञाणू जेको महफ़िल जो आराणो जेके अखियुनि आए ॾिठो ओ मूंखे आए मिठो जेके अखियुनि आए ॾिठो ओ मूंखे आए मिठो हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ जो दाणो आ हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ जो दाणो आ ओ माण्हू मिठा माण्हू जेको महफ़िल जो आराणो जेको जाणू त सभु सुञाणो जेको महफ़िल जो आराणो जेके अखियुनि आए ॾिठो ओ मूंखे आए मिठो जेके अखियुनि आए ॾिठो ओ मूंखे आए मिठो हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ जो दाणो आ। अब यहाँ पे जो सिंधी खवातीन है उनके लिए गाना है सिंधी खवातीन गुलन ते अखियूं बदामी पाण के आए सजाए जीअं वञा पियो मस कटींदो तीअं पे पाण खे ठाहे वार गुलन ते अखियूं बदामी पाण के आए सजाए जीअं वञा पियो मस कटींदो तीअं पे पाण खे ठाहे जंहिंजो खिलण लाजवाब जंहिंजो उथण बेमिसाल जंहिंजो खिलण लाजवाब जंहिंजो उथण बेमिसाल मूंखे हुन सां थी वियो प्यार गुलाबीअ जोड़े में ओ गुलाबीअ जोड़े में सुहिणो लॻे पियो मुंहिंजो यार सुहिणो लॻे पियो मुंहिंजो यार गुलाबीअ जोड़े में ओ गुलाबीअ जोड़े में। Thank you so much. Thank you so much. Now I would like to call our very talented vocalist and our Jagjit Singh. Zabis का Jagjit Singh आ रहा है अब. Ashad Javeri, please give a big round of applause. अच्छा मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपको भी मेरी टीम की तरह मेरा साथ देना होगा गा के और तालियां बजा के ठीक है ओके अलिफ अलाए चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हुन फियस बात दा पानी दे के हर के हर जाई हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना हते जिस ये बूटी लाई हो फिर मेरे जुगनी जी एवे अल्लाह वाले दी जुगनी जी एवे नबी पाक दी जुगनी जी एवे मौला अली वाली जुगनी जी एवे मौला अली वाली जुगनी जी एवे सर सब्ज दी जुगनी जी दम गुटकू 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 गुटकू कर साईं इन कलमन भी दो पढ़ साईं फिर मेरे आ जुगनी जी एवे अल्लाह वाले दी जुगनी जी एवे नबी पाक दी जुगनी जी एवे मौला अली वाली जुगनी जी एवे मौला अली वाली जुगनी जी एवे मेरे पीर दी जुगनी जी जुगनी तार खाई विच थाल जुगनी तार खाई विच थाल छठ दुनिया दे जंजाल छठ दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं बड़ा बंदिया नाल
कुछ नहीं बड़ा बंदिया नाल जुगनी धार खाई विच थाल छट दुनिया दे कंजाल कुछ नहीं बड़ा बंदिया नाल रखे सावण सिद्का अमाल वा फिर मेरे जुगनी जी वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी वे नबी पाक दी जुगनी जी वे मौला अली वाली जुगनी जी वे मौला अली वाली जुगनी जी वे सर सब्ज दी जुगनी जी वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार आ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार आ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार आ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार आ ना करतिया खेर प्याड़ी माँ देंदिया गालड़ियाँ दिन दिन गली जुआनी जानी यूं सोना कुटिया लड़िया औरत मर्द शहजादे सोने ओ मोतियों लालड़िया सिरथा सरफा करन ना डरे पी पड़े पिया लड़िया ओ दाता दे दरबार चाको पावर खेड़ सुआलड़िया पंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार आ पंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार आ पंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार आ पंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दादा दे दरबार वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दम गुटकू 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 गुटकू कर साई इन कलमन भी दो पढ़ साई फिर मेरे जुगनी जी वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी वे नबी पाक दी जुगनी जी वे मौला अली वाली जुगनी जी वे मौला अली वाली जुगनी जी वे मेरे पीर दी वे मेरे पीर दी जुगनी जी 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 वे सर सब्ज दी जुगनी जी वे सर सब्ज दी जुगनी जी वे मेरे पीर दी जुगनी जी वे मेरे पीर दी जुगनी जी वे सर सब्ज दी जुगनी जी जुगनी जी जुगनी जी जुगनी जी जुगनी जी जुगनी जी थैंक यू थैंक यू Thank you so much, Ashad. What an incredible performance. Okay, so now I would like to conclude this musical segment with the OG song. Any guesses? Exactly. Kya baat hai? So I would like to call the one and only Sarosh Ayaz Khan. Okay, I'm sure you all know the lyrics, so please clap and sing along with me. ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे
ये कारवां। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Sing this next part with me. दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता
पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान Give it up for the entire team of Music Arts Society. Specifically, we are blown away. Fantabulous performances, sheer talent, a lot of passion. Thank you very much for bringing together your exuberance, guys. And I'd like to call you all one by one so we can give you the appreciation that you truly deserve. Starting off, and I want all of you guys to give a thundering round of applause. Ladies and gentlemen, Muiz Qadir. Muiz, we were blown away. Truly commendable. And we would also like to, since we have them on stage, honor them. Can I have my co-host, Lena, please? All right. And to do the honors, can I have Mr. Imtiaz Qazi, officiating President, Zabist University, along with VP Academics, Dr. Altaf Mukati, Ma'am Nasreen Haq, VP Development and Finance, along with our honorable chief guest, Dr. Talib Lashari. आप सबकी भरपूर तालियों में to do the honors and facilitate our wonderful performers. And last but not the least, someone who captained the ship, the very exuberant, flamboyant. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Harim Siddiqui, Student Affairs Advisor, Zabist University. So please come forward and do the honors to our performers, starting off by Muiz Qadir from BS Computer Science. Congratulations, Muiz. You blew us away. Next up, yes, our council member, Ambiya, will do the honors. Please facilitate. We also would like to call on stage Reverend Dr. Suleiman Sheikh to please come and do the honors. Sir, please join us in this wonderful moment, and I request all of you to welcome him with a thundering round of applause. We would also like to call on stage Secretary Council, Mr. Shams Jafarani, to please come up on stage and do the honors. A big round of applause, ladies and gentlemen. I'm not Secretary of Council, I'm the Secretary of the Board. Oh, yes, of course. He's, ladies and gentlemen, the Secretary of the Board. Thank you very much, sir, for your prestigious presence. Congratulations, Muiz. You blew us away. Like literally, the exuberance you have, the energy, and the way you led this entire team is worth mentioning. Thank you. We now have Taha Kaisar from BSMS. Aap sabki bharpoor taaliyon mein, ladies and gentlemen. From handling the instruments, maneuvering the entire creative concept, truly commendable. Congratulations, Taha. You were one of the souls of this occasion. Please put your hands together for Ashad Javeri. Thank you very much. You were fantabulous. Congratulations. You keep surprising us. Next up we have Sarosh Ayaz. आप सबकी भरपूर तालियों में. Congratulations. What a wonderful sight to behold, receiving the honor from our honorable dignitaries. Next up, we have Taha Mazhar, ladies and gentlemen, from BBA. A very strong pillar of this group.
Taha Mazhar. Thank you very much to all our honorable dignitaries. Next up, we have Anasha Shakil from the Department of Psychology. Congratulations, Anasha. You enlightened us with your performance. And now we would like to honor our creatives from the world of theatre. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Adil Ali from the Department of Computer Science. You were a wonderful politician. From the way you entered, the way you, from until the very end, you stayed in character and proved your impeccable acting skills. So congratulations on that. Next up, we have Mohammad Asad from the Department of Artificial Intelligence. आप सबकी भरपूर तालियों में. Wonderful performer, punctual, and a lot of exuberance that he proved and showcased. Thank you very much, Asad. And we have another Asad, but he's from the Department of the Languages Program. आप सबकी भरपूर तालियों में Asad Jahangir. Congratulations, Asad. Thank you for being part of the Independence Day celebration. A big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. And now, please welcome on stage Syed Midhat Hussain from the Department of Media Science. Midhat, again, you blew us all away with your fantabulous words. Truly commendable. Congratulations. All right, from the world of words and poetry, we have with us Saddam Hakim from the Department of BS English. The words you enlightened us with, the incredible talent you have, the way you accentuated the moment with your impeccable poetry was commendable. Congratulations, Saddam. Then, of course, once again, may I have on stage Syed Midhat Hussain. Congratulations, Midhat. Thank you again. Inshallah, sir. Congratulations, Midhat. That's quite a remarkable compliment you got. Okay, I would now like to invite on stage my wonderful co-host. She has been very kind and supportive throughout this journey. Put your hands together for Elena Shahid from the Department of Media Science. Congratulations, Elena. Thank you very much for staying with us, for your constant support throughout this process. Thank you. और अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरे साथी मेज़बान जनाब अली रज़ा ख़ान को कि वो आएँ और अपना सर्टिफिकेट्स लें. We would now like you all to join us collectively for this celebration. We will have one energetic song and we will conclude this session. All our wonderful faculty who's present here, you're all requested to come up on stage. Let's celebrate, encapsulate this moment. Everyone, and of course, the heartbeat of this event, the entire Zabis Student Council is requested. Come on up, guys. Let's celebrate the spirit of independence. All our wonderful faculty, starting off by Sir Saklan Zaidi. Sir, please. Sir Hussain Kamil. Sir Sarmad. Sir Taha Khan, our wonderful theatre coach. Everybody here, please join us on stage and let us conclude the celebration of Independence Day.
On behalf of the entire Zabist community and the Zabist Student Council, we wish you all a very happy Independence Day. अलेना के एक शेर के साथ हम आज की इस तकरीब का इख्तिताम करेंगे. अलेना प्लीज. और उसी के साथ साथ एक धमाकेदार मिली नगमा. उसने मुझको लिखकर भेजा तुम भी आना, जुगनू कलियां चांद सितारे सभी आएंगे. मैं अक्सर देखता हूँ और सोचता हूँ यार हम एक तस्वीर में कितने प्यारे आएंगे. You all, and this is for you and JJ, because JJ wanted this. ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां. दिल दिल जा जा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा. चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, फूल की लड़ी में भी रोए तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है. ओ दिल दिल जा जा, दिल दिल जा जा पाकिस्तान. थैंक यू ऑल वंस अगेन. बहुत शुक्रिया. और आप सबको ज़ाबिस्ट कम्युनिटी और ज़ाबिस्ट स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू ऑल.